Albert Einstein once said, "The important thing is not to stop questioning." The conversations are all about exploring different areas of science, philosophy, and in general about life. This is all about knowledge. Do not forget to share so that the string of knowledge, curiosity, leads us humans to become educated individuals. The feedback of yours is the key to improve the conversations I will have in the future. As the Simon Sinek said, the goal is not to be perfect by the end. The goal is to be better today. One, two, and three. Hello, everyone. I hope you all are doing very well. Today, we have with us Mr. Asjad Islam. As you must have seen from the previous podcast, we have a wonderful discussion. And I don't think that I now need any kind of introduction of Mr. Islam. So let's move to the guest panelist. I would say so. The guest panelist is really special because of her bold ideas and thoughts, especially. So let's move to introduction. Like her name is Miss Rabia Ikram, and first of all, she's very a passionate book reader. That's the first quality I like her the most. And multi-talented personality, starting from exploring the world of glamour and beauty. Like she participated in Miss Beat Pakistan. Her bold and truthful thoughts just give me a different lens, different way of thinking about different scenarios, and I really like about her. And let's move to the academic career. She started her academic career from Beacon House School, and then moving to Lahore, she done his BS in biotechnology at University of Veterinary Animal Sciences, and now she's pursuing her MPhil from Center of Excellence in Molecular Biology or CHEM, Punjab University. So, without further delay, I would like to start from the very basic question. Let's say start from Mr. Asad Islam. When we heard a word school, what things come to our mind? And if I start a conversation by defining a school, it could be a school is an educational institution that it is on Wikipedia. That is the most famous one. It's an educational institution designed to provide learning spaces and learning environments for the teaching of students or pupils, if we are talking about the kindergarten and primary schools and everything, under the direction of teachers. In this definition, we can ask thousands of questions and we can have debates. But let's take a bigger picture. And I would like to ask Mr. Islam, what things come to your mind when you heard a word school? सो ऐसे ऐसे मुश्किल सवाल पूछते हो सबसे पहले ना ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली जो मीनिंग ऑफ स्कूल, मीनिंग ऑफ कॉलेज, मीनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, ये तीनों बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे एजुकेशन नो डाउट होती है, एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं लोग, हम पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम सब कुछ सीखते हैं, लेकिन उसको एक ना सर्टेन एक कह लो आप उसको बहुत लिमिटेड रखा हुआ है हमने। हम अब 10-20 साल से जो किताबें चलती आ रही हैं वो आज तक चलती आ रही हैं, उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं है। अगर हम इसको कहें कि स्कूल वर्ड से मुझे क्या समझ आती है, तो आई वुड रादर से वन बुक, और इसको इसको मैं बेसिकली ऐसे कहना चाहूँगा कि एक किताब है जो 20-30 सालों से पढ़ाई जा रही है, ठीक है, एक ही नॉलेज है जो 20-30 सालों से पढ़ा है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। हमें उसमें बेसिकली हमें स्किल्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमें एक बुकिश नॉलेज मिल रहा है सिर्फ। स्कूल इन वन वर्ड, अ बुकिश नॉलेज, अ प्लेस वेयर वी गेट अ बुकिश नॉलेज ओनली। So the same question I would like to ask Mr. Abia Ikram. If someone asks, try to empathize a person, a child who just don't know anything about it.
like if you suppose yourself at the age of 6 Abdullah, would or you 5. please repeat your question? Okay, okay. Will you please repeat your question, because I was having a few internet issues. Okay, okay, no problem. So I was just saying that try to empathize yourself at just like a child, maybe a 4 or 5 year, and then try to answer the question, what is school for you? All right. Abdullah, you have asked me that try to empathize, and I should imagine myself at 3 to 4 years old and then have to answer what comes into my mind when I heard the word school. All right. Uh, to be very honest, if मतलब कि अगले अपने 3-4 साल की एज में if someone speaks a word school, I have no idea what school is all about. अगर हम अपने करंट एरा में जहाँ पे इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है और हर चीज़ जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, अगर हम आज के भी 3-4 साल के बच्चे को जो पूछेंगे कि व्हाट इज़ स्कूल, so I don't think so anyone could be able to answer it properly. Everyone will say school. When we hear about the word school, what comes into our minds are copies, books, bag. जैसे कि असजद ने अभी कहा है कि एक बुक और एक ना स्पेसिफिक किस्म का पैरामीटर जो है वो हमारे माइंड में आता है, ठीक है। तो स्कूल जो होता है वो एक हमें तो जो प्रेजेंट किया गया है, सोसाइटी ने जो प्रेजेंट किया है या जो हमारे माइंड में आता है जब हम 3-4 साल के बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमें पता चलता है कि स्कूल इज़ अ स्पेस वेयर वी हैव टू गो, वेयर वी हैव टू अटेंड और क्लासेस, हमें ये लेसन मिलेगा। इतना ज़्यादा वो एक ड्रेरी राउंड्स होते हैं कि आपने होमवर्क करना है, क्लास लेनी है, होमवर्क चेक कराना है, नेक्स्ट डे स्कूल जाना है एंड ऑल दैट, इट गोज़ ऑन बहुत लंबे अरसे तक। और मुझे जो एक चीज़ की मैं ये आता है मेरे माइंड में जब मैं स्कूल का नाम लेती हूँ, मैं स्कूल को ऐसे कभी भी नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में जो मेरा एक लर्निंग स्पॉट था, जहाँ पे क्रिएटिविटी को इन्हांस किया जा रहा था, जहाँ पर जो हमारे टैलेंट्स हैं उनको उभारा जा रहा था या कुछ ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा था जो हमारे लिए हेल्पफुल होता। सो व्हेन इट कम्स टू द वर्ड स्कूल, school is all about classes, school is all about books, students and teachers. No enjoyment, no fun, nothing is all about learning. I don't think so we learn there. I think कि वही चीज़ें हैं जो सालों से रिपीट होती आ रही हैं। In can I want to add one sentence? Yeah, yeah. School is a place where we learn cramming, the real mean of cramming. Yeah, रट्टा yeah. लगा जो समझते हैं वो बेसिकली प्लेस है जहाँ पे सिखाया जाता है। बहुत कम ये नहीं मैं कह रहा कि सारे स्कूल ऐसे हैं या सारे टीचर्स ऐसे हैं, नो डाउट टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस यही होता है, बस आपको सिखाया कम जाता है, आपको ये रट्टा ज़्यादा कि लकीर के फ़कीर बन जाओ, ये ज़्यादा होता है वहाँ। अब्दुल्ला, may I add one thing? Yeah, yeah. मैं एक्चुअली रिसेंटली मैंने, मुझे अब याद नहीं थेरी का नाम, बट मैंने किसी बुक में पढ़ा है कि एक हमारी अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस होती है जो हम जेनेटिकली जिसके साथ पैदा होते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल हम लोगों का अपना होता है। दूसरे जो आप जब देखते हो एक छोटा बच्चा जो 7-8 साल तक है जो स्कूल नहीं जा रहा, ही विल बी डूइंग वेरी बेटर थिंग्स अपनी लर्निंग से, उसके क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, वो अच्छे क्वेश्चंस पूछेगा। जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तब हमारी कोग्निटिव लर्निंग स्टार्ट होती है, वो लर्निंग जिसमें हमने अपने एक्सपोजर से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है। जब आपकी कोग्निटिव लर्निंग स्टार्ट होती है जो कि इट्स ऑल अबाउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ आइडियाज़, इट्स ऑल अबाउट अ पर्टिकुलर करिकुलम, उसी के अकॉर्डिंग जब आपकी ग्रूमिंग होना शुरू होती है तो जो आपकी क्रिएटिव लर्निंग होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। और वो कभी कभार तो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आई कैन बेट ओवर इट कि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऐसे होंगे, इंक्लूडिंग मी। आई वॉज अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, आई कैन लिटरली डू एनी थिंग, बट नाउ आई कैन नॉट इवन पिक अ पेंसिल एंड राइट अबाउट अ वर्ड अबाउट एनी थिंग। तो वो जो हमारी कोग्निटिव लर्निंग के चक्करों में हमारी जो अपनी क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। That's a very interesting point. Like cramming versus learning is like going on right now. Most of the schools Yes. are focusing on cramming, not learning. Yes. But what do you say about it? Like when a child like just a 3 to 4 years, 3 to 4 days, the parent are talking about like इसे इंजीनियर ही बनाना है, इसे डॉक्टर ही बनाना है। आई बिलीव दैट वहां से ही हमारा ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कि हम सिर्फ और नैरो माइंडेड हमारी सोच है। अब अगर हम स्कूल्स में बच्चे को जाके, आई गेस ज्यादातर पेरेंट्स यही इनका एक ख्वाब बन जाता है कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दें या इंजीनियर बना दें, तो वो अपने बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं। तो बच्चे से पूछा जाता है कभी कि वो क्या बनना है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इसके अलावा उसके पास चॉइस नहीं होती।
आई बिलीव कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जापान की एंड फिनलैंड की. लाइक इन फिनलैंड आई गेस नो होमवर्क इन द होल स्कूल टाइम, देयर विल बी नो होमवर्क. एंड जापान के अंदर पहले 5 या 6 साल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ कलर डिफरेंस करना सिखाएंगे आपको. एंड इन द पहले 6 साल के अंदर हमारे यहाँ पर इंग्लिश भी सीख ली जाए. आई डोंट नो व्हाई इंग्लिश को क्यों सिखाया जाता है पहले 6 सालों के अंदर ही. और मुझे अपनी बात याद आ गई, एक हमारे फैमिली के अंदर ही. तो वो कहते हैं कि जब मैं 7th क्लास के अंदर था, ये तकरीबन 10 से 20 साल पहले की बात है, तो मैंने ABC को देखा था पहली बार. लाइक 7th क्लास तक सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेजेस को, उर्दू अदब को, ये इस तरह की जो भी चीजें हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, बट वो उनको ज्यादा फोकस किया जैसे उर्दू थी. और इसी पर भी मतलब है कि बहुत ज्यादा डिबेट हो सकती है कि उर्दू का मतलब है कि ये होता है डिस्ट्रॉय जो हमने कर दिया उर्दू को. इसके पीछे भी शायद यही बड़ी बहुत बड़ी इसमें बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो ये है कि आजकल के दौर में ना, एक बच्चे को छोड़े यार, मैं अपनी बात करता हूँ. मुझे तो ना प्रॉपर इंग्लिश अच्छा, ये आपने शुरू में कहा ना कि इंग्लिश सिखाने लग जाते हैं और फिर उर्दू पे कंसंट्रेट वगैरह, तो उसमें वो ये रहता है, 2 कश्तियां होते हैं, ना बंदा इधर का रहता है ना बंदा उधर का रहता है. आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि ना मेरी प्रॉपर उर्दू सही है ना प्रॉपर इंग्लिश सही है, और अल्लाह माफ करे जो हम मैसेज लिख रहे हैं तो पता ही नहीं क्या लिख रहे होते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज है ये तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया. तो इसलिए हमें एक पे कंसंट्रेशन करनी चाहिए. हमें पहले अपनी लैंग्वेज पे कंसंट्रेशन करनी चाहिए. आपने देखा होगा जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, वो जहाँ पे भी कहीं जाता है अपनी स्पीच देता है, वो चाइनीज में देता है. वो ही नहीं देखता आगे कौन बैठा हुआ है, वो चाइनीज में अपनी स्पीच देता है और फिर बाद में उसका साथ ट्रांसलेटर होता है, जो भी वो कहता है ट्रांसलेट करके दे देता है. वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं. हम अपनी लैंग्वेज को इतना प्रेफर करते ही नहीं है. हमें शुरू में वो सिखाया ही नहीं जाता, या हम शुरू में सीखते हैं अलिफ बे पे, और उसके बाद जी बस ये लफ्ज बना लिए 2-4 और बस. यहाँ पे अगर किसी से पूछ लो कि या तुम्हें टेंसेस आते हैं या तुम्हें ये सारे आर्टिकल्स वगैरह ये सब कुछ आते हैं इंग्लिश का, वो फटफट बताएगा. लेकिन ये चीज़ उर्दू में पूछ लो वो ब्लैंक हो जाएगा. क्या पे पता होंगे तो बहुत नॉर्मल से पता होंगे. तो हम 2 कश्तियों में सवार हैं और किसी वक्त गिर सकते हैं. ये सिस्टम. बिल्कुल बिल्कुल सही. सो जब स्कूल का जो बेसिक, जब एक उसे कहते हैं दावा होता है, स्कूल जो भी शुरू करता है या फिर जो भी प्रिंसिपल होता है या टीचर होता है, उसका दावा क्या है? वी हेल्प चिल्ड्रन टू ग्रो. डू यू थिंक दैट स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, वी विल मूव टू द वर्ल्ड and then talk about it, but specifically in Pakistan, schools are the places for grooming of children or not? द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा जो हम स्कूल्स को पर्टिकुलरली ब्लेम नहीं कर सकते. हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वही पूरा फ्लॉप है. लेकिन क्योंकि स्कूल्स आर द फाउंडेशंस जहाँ से एक बच्चे की लर्निंग स्टार्ट होती है, जो उसका बेसिक स्टेप है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर बच्चों को अगर आप एक अच्छी बेस प्रोवाइड करते हो, एक अच्छी फाउंडेशन देते हो, तो वो आगे तक अच्छा ग्रो करेगा. जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन, व्हेन यू वर रेजिंग योर क्वेश्चन एंड यू जस्ट मेंशन्ड कि हमारे पेरेंट्स आर ओनली टॉकिंग अबाउट either to become an engineer or to become a doctor. लेकिन इसमें यह कि अगर हम उनके साथ एम्पैथाइज करने की कोशिश करें और हम ये देखें कि उन लोगों का एक्सपोजर कितना एक्सपोजर उन लोगों का है, उनके अकॉर्डिंग ये दो प्रोफेशंस ऐसे हैं जो एस्टीम्ड हैं, रादर देन कि आपका बच्चा या बच्ची कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, दे विल ओनली बी फोकसिंग ऑन 2 प्रोफेशंस, आइदर टू बिकम एन इंजीनियर और टू बिकम अ डॉक्टर. और वो इस चीज़ से बिल्कुल ही बेबहरा होते हैं कि भाई इसका आगे स्कोप क्या है, विल दे बी फाइंडिंग एनी सूटेबल जॉब फॉर देमसेल्व्स. तो अगर तो बात हम अपने पेरेंट्स की करें तो भाई उनका एक्सपोजर, उनको उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और अगर आप ये बात कर रहे हो ना कि एजुकेशन हमारी जो है वो स्कूल्स में बेसिकली अच्छी प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एजुकेशन इज़ फॉर डिग्रीज,
बट जैसे हम लोगों ने अपनी स्किल सेट डेवलपमेंट साथ साथ स्टार्ट की थी, द स्किल सेट डेवलपमेंट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपनी एक सजेशन दूँ, क्योंकि अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि जिसमें हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दें, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस राइट एट दैट स्टेप, एंड इट विल टेक 100 of years, मे बी द जनरेशन ऑफ आवर्स, लाइक जो हमारी जनरेशन होगी उसको हम इतना फ्रीडम दें कि वो अपनी पसंद का कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, मे बी कि उस पॉइंट पे जाके कुछ चेंज आ जाए। बट द राइट नाउ हमारे पेरेंट्स या जो वो जनरेशन चल रही है सारी अर्ली 90s वाली, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगी टू डील विद दैट प्रॉब्लम, बिकॉज देर इज़ अ प्रॉब्लम नाउ, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन। इफ आई टॉक अबाउट सोल्यूशन, according to my opinion, I would suggest that degrees and educations are important as per the requirement of the society, but we need to develop a skill set into the students in the very early ages, like the time management, leadership, teamwork, whatever the basic skill sets are. This should be inculcated into the personality of a person, या एक बच्चे की पर्सनालिटी में बहुत बिगनिंग से ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जब वो बिगनिंग से ऐसी चीज़ों के साथ एक्सपोज हो तो वो बेहतरीन जाए। क्योंकि अगेन देयर इज़ अ थ्योरी, एंड आई एम सॉरी आई फॉरगेट द बेसिक थ्योरी नेम, कि सम देयर आर few people who are inborn leaders and few become the leaders after exposure, after learning, after proper polishing. कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लीडर बने हैं, वो लीडर बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हमें अ लिटिल उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है और वो फिर लीडर बनेंगे। तो समवन हैज़ लीडरशिप, एंड आई थिंक कि अब अगर एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हो सकता तो वी नीड टू ऐड द स्किल सेट डेवलपमेंट अपने एजुकेशन सिस्टम में उसके साथ साथ, सो दैट कि बच्चे जो हैं वो फैसिलिटेट हो सकें। इसके अंदर एक Yeah, है yeah, चीज़ sure. कि ना हमारे 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 पास दो गैप्स हैं. फर्स्ट गैप इज बिटवीन एजुकेशन सेक्टर एंड द स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, एंड सेकंड गैप इज बिटवीन द एजुकेशन सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इसमें होता क्या है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा के सारा कुछ निकाल आते हैं और आखिर में हम कहते हैं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है. और अगर जॉब्स का फॉर एग्जांपल इंटरव्यू मिलता है तो एक स्पेसिफिक पर्सन के पास वो नॉलेज नहीं होती. क्यों? क्योंकि हम इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं मीट करते. हम एक ही चीज़ पढ़ाई जाते हैं और जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, जो पाकिस्तान को फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है, एक बंदे एक इंडस्ट्री है, उसे डिज़ाइनर चाहिए और यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ अगर थर्मल के रिलेटेड ही पढ़ाते रहें या डिज़ाइनिंग का पढ़ाएं तो थोड़ा पढ़ाएं, तो इंडस्ट्री की डिमांड नहीं मीट होती. फिर आखिर में वही चीज़ आ जाती है, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा उसे ही लेंगे क्योंकि उसने तो एक्सपीरियंस सीख लिया है. सेकंड चीज़ क्या आती है, अच्छा एक चीज़ इसकी वजह से ना, ये इंडस्ट्री और एजुकेशन का गैप है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अब लोगों में अवेयरनेस ये आ गई है कि खाली इंजीनियरिंग नहीं कर रहे लोग, या ये नहीं कहते यार इंजीनियरिंग हो गई या मेडिकल हो गया या एमबीए. अब जाके मुझे नज़र आता है, अब जो हमारी फील्ड है ना वो वास्ट हो रही है. लोग अलग अलग आइडियाज़ लेकर अलग अलग फील्ड्स में जा रहे हैं, अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं. ये सब कुछ ये स्किल बेस है. और रही बात जहाँ पे अगर पेरेंट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो उसके अंदर हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि पेरेंट्स और सोसाइटी में नज़र ये याद होता है, अच्छा ये तो इंजीनियर है, अच्छा ये तो अगर कोई पेंटर हो फॉर एग्जांपल, उसको नहीं कोई कहेगा यार तुम पेंटर बनो, उसके पास लोग देखते हैं पैसा किसके पास ज़्यादा है. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंजीनियरिंग डॉक्टर के अलावा ना बहुत कम होता है कि किसी का स्कोप हो, किसी के पास पैसा हो, या फिर हो तो एक किस्म की लक ही निकलती है. तो इसलिए भी सोसाइटी का एक विजन बन चुका है कि यार यही लोग हैं, यही फील्ड है जहाँ पे बस पैसा मिलेगा. क्योंकि एट द एंड ऑफ लोग स्किल्स को भी देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि लोग अर्निंग किस तरह कर रहे हैं. और अर्निंग अगर आपकी उस फील्ड में नहीं आ रही अब, तो फिर वो फील्ड आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लग जाता है, उसको बुरा कहने लग जाता है.